Good evening. Please mute yourself, बच्चे. Shravani, unmute yourself. So you are absolutely right. You are saying there is a subject pronoun and an object pronoun because a sentence has two parts. It has a subject, it has an object. It has a subject and a predicate. Predicate में हमारा verb भी होता है और object भी होता है. That's absolutely right. तो हमारे पास pronouns जो हो सकते हैं वो subject के भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं. बट अब मुझे ये बताओ प्रोनाउन होता क्या है. वॉट इज अ प्रोनाउन. आपने सब्जेक्ट और वेट रोशन. वॉट इज अ प्रोनाउन. आई वॉन्ट टू सी हाउ मच चिल्ड्रन रिमेंबर व्हेन आई टीच देम. नहीं पता. इफ यू डोंट नो से आई डोंट नो. कोई बात नहीं. देर इज नो टेस्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज. हाँ. Never mind. Mute. Let me ask Sandhya. Maybe she remembers. Sandhya, what is a pronoun? Yes, Sandhya, what is a pronoun? हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं चाहिए. What does it mean? What does it mean? बिल्कुल सही बोला आपने. सर्वनाम होता है. बट सर्वनाम भी क्या होता है. वॉट इज इट. बताओ. इंग्लिश में कैसे बोलोगे. उसको क्या बोलते हैं. क्यों नहीं पाता है. मैंने लिखवाया भी नहीं. लिखवाया था. नहीं लिखवाया था या लिखवाया था. याद नहीं है आपको. अच्छा. अब लेट मी सी वेदर रोशन कैन आंसर इन इंग्लिश. म्यूट everybody else. Come Roshan. You've been raising your hand, so let me see if you can answer in English. What is a pronoun? Pronoun is replacing the noun. A pronoun is replacing. What is it? It is a word. Right? Very good. Don't get confused. Mute yourself. Stay here. So pronoun is a word that replaces the noun. Right? Very good. Absolutely correct. Very nice. Chalo, sit down. Okay, so Sandhya, how will you answer in English? What is a pronoun? Sandhya, tell me now in English, how will you say it? Shravani, you tell me. What is a pronoun? Shravani, unmute yourself. I know you have some cousins visiting you. Looks like. So you are busy with them. Never mind, let them also sit, but you answer the question. Chalo, on karo video and tell me and unmute yourself. So what is a pronoun? Come on. Tell me what is a pronoun. Don't talk to your friends right now. Talk to me. What is a pronoun? अरे अभी तो रोशन ने बताया. ये क्या बात हुई कि याद नहीं आ रहा. संध्या आप बताओ. Used. Very good try. Okay, let me write. Very good. Is a word. वर्ड शब्द है ना. शब्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में. वर्ड. हाँ. वेरी गुड ट्राई. हाँ. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड. Is it is used in place of a noun. Okay.
used in place of a noun या replaces a noun भी उसने बोला, वो भी सही था. तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. याद आ गया? ओके, टेल मी. Words that we can replace noun with are pronoun. Very good. So words that. आपकी आवाज क्यों कम हो गई? ठीक से बोलो. मैम मैंने ना आदर्श भैया की कॉपी से पढ़ा था. आदर्श भैया की कॉपी से क्यों? मैंने आपको भी बताया था. आदर्श, ओके, अब म्यूट करो. मैं लिख रही हूँ, सब लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे. सो वील से प्रोनाउन, राइट the date and write pronouns. A word that is used, simple मैं बोल रही हूँ, in place of a noun is called a pronoun. Okay? अब जो ये वाला है used in place of, इसको ही हमने अभी रोशन है टोल्ड अस. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अ वर्ड दैट, इसी की डेफिनेशन लिख रही हूँ. अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. ओके? यस. दिख नहीं रहा स्क्रीन? ओके, नेवर माइंड. I'll just share it. I hadn't shared it. I forgot to share it. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. या हम कह सकते हैं, और सेम चीज की डेफिनेशन एक और, a word that replaces a noun, used in place of, उसको बोलते हैं replace करना. Replaces a noun is called a pronoun. Write it down. Yes. What is his name? Nishkarsh, do you remember what pronouns are? Last time you had left the class in between. क्या हो गया था? क्या हो गया था? मैम ट्यूशन वाले बच्चे बुलाने आ गए थे. हाँ, तो बीच में अगर कभी जाना हो तो मेरे को बता के जाना चाहिए. ऐसे चुपचाप से नहीं छोड़ के जाना चाहिए. मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अगर चुपचाप से उठ के बंद करके चली जाऊं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? बताओ निष्कर्ष, अच्छा लगेगा? बस फिर इसलिए आप भी ये रूल फॉलो करना. लिखो अब ये डेफिनेशन जल्दी से, फिर मैं बताऊंगी हमने जो उस दिन किया था. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट, क्योंकि आई डोंट थिंक संध्या और श्रावणी को भी याद है अभी. तो मैं वो वाले शेयर करती हूँ स्क्रीन जो मैंने उस दिन करा था. फिर हमने क्या करा था? अब हमने ये डेफिनेशन लिख ली, राइट? कि जो रिप्लेस करता है वो सबने लिख ली. अब हमने, चलो, आई विल आस्क समबडी टू रीड इट. सो सोनाक्षी फ्रॉम शिंदेवस्ती सेंटर, कम एंड रीड दिस. Sonakshi, come and read the first sentence. Nidhi. Mute yourself, Sandhya. Nidhi place With. Sandhya. Very good. बस first sentence. Mute. अभी इधर ही रुको. भाग कहाँ रही है सोनाक्षी? खड़े बैठो वहीं पे. हाँ हाँ. निधि plays with संध्या. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है?
Everybody write these sentences. Which is the subject in this? I've already marked it. निधि Nidhi. What is a subject? नाउन नाउन तो होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है, बट होता क्या है सब्जेक्ट? हिंदी में ही बताओ चाहे। अच्छा म्यूट करो। नहीं पता मैम ओके म्यूट म्यूट म्यूट। वेरी गुड, सिट डाउन नाउ। संध्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ सब्जेक्ट? होता क्या है सब्जेक्ट? चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, पर बताओ मेरे को होता क्या है सब्जेक्ट। संध्या बताओ। शाबाश। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। हमने नहीं, अभी सानव्य नहीं पढ़ना आपने। निधि प्लेज विद संध्या, इसमें सोनाक्षी ने कहा कि निधि जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है क्या मेन वर्ड का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस नहीं, अभी म्यूट करो। चलो श्रावणी बताएगी। म्यूट करो संध्या। हाँ श्रावणी बताओ क्या होता है सब्जेक्ट? अच्छा, पहले लिखते हैं, मगर क्यों लिखते हैं पहले उसका नाम? देखते हैं। निष्कर्ष को मालूम है? निष्कर्ष मालूम है सब्जेक्ट क्या होता है? अरे ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। सब्जेक्ट क्या होता है बताओ। फिर से मैं वही रिवाइज कर रही हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? रामनगर सेंटर बता सकता है? पहले बताओ मेरे को। निष्कर्ष बता सकता है व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब क्या है? मैम जिसके लिए बोल रहे हो या बता रहे हो जिसकी बात, जिसके लिए नहीं, जिसकी बात कर रहे हो, है ना? तो अभी इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो निष्कर्ष। वेरी गुड। निधि पढ़ो पूरा सेंटेंस। निधि प्ले विद संध्या प्लेज विद संध्या। निधि थर्ड पर्सन होता है। अभी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फिर से करेंगे। पर निधि प्लेज विद संध्या। म्यूट योरसेल्फ श्रावणी। हाँ, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट निधि, इसलिए निधि क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ। संध्या, शिंदेवस्ती सेंटर, रामनगर सेंटर, श्रावणी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट? द पर्सन, प्लेस और थिंग। इधर लिखती हूं मैं। सब्जेक्ट क्या होता है पहले लिखो। ये बेसिक अच्छे से समझ लो अभी से ही, तभी आगे चल के अच्छा रहेगा आप लोगों का। यू विल रिमेंबर थिंग्स। सो अच्छे से समझो सब्जेक्ट क्या होता है। सो सब्जेक्ट सेंटेंस में द पर्सन, प्लेस, मैं पूरा पर्सन प्लेस एनिमल नहीं लिख रही। द नाउन, वो सारा क्या है? नाउन अबाउट विच the sentence is. Comma is called the subject of the sentence. तो subject क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। The noun, और होता तो नाउन ही है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन तो वैसे भी सब नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह यूज हो सकते हैं, इसलिए वो प्रोनाउन भी हो सकता है। द नाउन स्लैश प्रोनाउन मैं लिख देती हूँ। प्रोनाउन अबाउट विच द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वेरी गुड। ये सबको समझ आ गया? गिव मी अ थम्स अप। सबको समझ आया? लिखा सबने? अच्छे से समझ आया? क्यों नहीं लिख रही हो? समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो?
अच्छा, लिखो भी, बाद में फिर नहीं होमवर्क करके भेजोगी. नाउ वील गो बैक टू द सेम सेंटेंस एंड रामनगर सेंटर, रीड द सेम सेंटेंस. निधि प्लेज विद संध्या. ओके, इसमें व्हाट इज प्लेज इन दिस सेंटेंस? रामनगर सेंटर, प्लेज क्या है? What is plays? Which part of speech is plays? क्या है वो? बोलो रामनगर सेंटर. नहीं पता मैम. प्लेज नहीं पता क्या है? ओके, म्यूट, कोई बात नहीं. ओके, की जगह म्यूट. We'll go back to शिंदे बस्ती में. I'll ask सपना. सपना, come forward. सपना. यस. हाँ, tell me what is plays in this sentence. निधि plays with संध्या. वर्क मतलब क्रिया करना. हाँ, what she is doing. तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या करता है, या क्या कर, म्यूट करो. क्या करता है या क्या कर रहा है या कैसा है, उसकी स्टेट बता रहा है, तो वो वर्ब है, मतलब क्रिया. तो प्लेस जो है वो क्रिया है, दैट इज द वर्ब. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग? इसमें क्या बता रहे हैं कि सब्जेक्ट निधि है, वो क्या करती है, व्हाट डज शी डू? टेल मी सपना. खेल रही है. शी प्लेज, राइट? She plays. So she plays with whom? Answer. Plays with whom? संध्या के साथ खेलना. With Sandhya. Absolutely. So when we say the subject plays with somebody, then that becomes what? The, उसको क्या बोलते हैं? संध्या क्या बन गई इस सेंटेंस में? She becomes the ऑब्जेक्ट. wonderful, very good. Go and sit down. So Sandhya plays with Nidhi plays with Sandhya. इसमें क्या है? We are talking about the subject, which is Nidhi. So Nidhi is the subject. What is she doing? What does she do? She plays. With whom? With the object, with Sandhya. We could also have said Nidhi plays. Oops, what's wrong? We could have said Nidhi plays with, instead of with Sandhya, I could have said with her toys. If I say this, now I'll ask श्रावणी. इफ आई से, अभी संध्या हमने बोला था ऑब्जेक्ट है, अब मैं बोल रही हूँ निधि प्लेज विद हर टॉयज. सो विच इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस नाउ? अभी हमने पहले बोला था संध्या है ऑब्जेक्ट. यस, हर. नहीं, सब्जेक्ट तो निधि है, प्लेज वर्ब है, हर टॉयज क्या है? हर टॉयज क्या है? हाँ, वेरी गुड. सो हर टॉयज इज द ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं. यहाँ पे हम संध्या भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में टॉयज भी हो सकता है. जैसे इफ वी रीड द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, तो अब हमने क्या किया? सब्जेक्ट निधि है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे संध्या है. अब इसी सेंटेंस को हमने प्रोनाउन से रिप्लेस किया, तो क्या बन गया? रीड रामनगर सेंटर, रीड इट.
रामनगर सेंटर, रीड इट. नहीं, रामनगर सेंटर को बोला है पढ़ने के लिए. रामनगर सेंटर पढ़ो. हाँ She plays with her. हाँ, तो हमने निधि को किस चीज से रिप्लेस किया है? निधि की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया है? बोलो. She. वेरी गुड. तो शी क्या बन गया? प्रोनाउन, राइट? क्योंकि गर्ल है इसलिए हमने शी यूज किया, राइट? और संध्या की जगह हमने क्या यूज किया है? With her. हर. हर है ना, संध्या की जगह हमने हर यूज किया, तो हर भी एक प्रोनाउन बन गया. अब आप लोग एक टेबल बनाओ, सब लोग, ठीक है? सब लोग ये टेबल बनाओ कि अब हमने दो गर्ल के लिए ही हमने क्या किया, दो दो प्रोनाउंस यूज किए, राइट? हमने दो दो प्रोनाउंस यूज किए गर्ल के लिए. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सब लोग टेबल बनाओ. संध्या बनाओ टेबल, आप भी. निष्कर्ष आप भी. तो सब्जेक्ट, तो एक हमने प्रोनाउन यूज किया सब्जेक्ट के लिए, और दूसरा हमने प्रोनाउन यूज किया ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? और जब हमने गर्ल की बात करी तो सब्जेक्ट शी था, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था? हर. तो गर्ल्स के लिए जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं तो हर लिखते हैं. सब म्यूट करो, एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ. ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी लिखो. तो ऑब्जेक्ट कौन सी चीज है जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है? द नाउन ऑन और प्रोनाउन on which the subject is. रामनगर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप लोग अपनी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हो मराठी में, मुझे तो नहीं समझ आ रही. बट ये समझ आया कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है. वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है. एनी नाउन और प्रोनाउन. ओके, सो द नाउन or pronoun on which the subject is doing something is called the object of the sentence. Okay? Now in the जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, अगर गर्ल है तो गर्ल का सब्जेक्ट प्रोनाउन शी होगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? हर. अब मैं पूछती हूँ किसी से, अब मैं किसी से पूछ रही हूँ, अगर बॉय है सब्जेक्ट, अगर कोई बॉय का नाम है, तो संध्या बताओ सब्जेक्ट प्रोनाउन बॉय के लिए क्या होगा? बताओ. बॉय के लिए इंग्लिश में सर्वनाम क्या होगा? प्रोनाउन सब्जेक्ट का. जैसे गर्ल के लिए शी था. वेरी गुड. तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही. लिखो सब लोग, ही. मैंने ही कहा था, हीज कहा था, हीज. हो, हिज तो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. हिज नहीं, ही. अच्छा, अब आप करेक्ट करो, मेरे को लगा आपने ठीक बोला. ही है. सब्जेक्ट प्रोनाउन बॉय के लिए क्या है? ही. मैं यहाँ पे
ही। अच्छा चलो, अब मेरे को निष्कर्ष बताएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर बॉय ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आपको मालूम है निष्कर्ष? उसके लिए क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने ये सेंटेंस देखा, निधि प्लेज विद संध्या, उसकी जगह अगर मैंने लिखा होता निधि प्लेज विद निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष तो बॉय है। ओके, तो संध्या था तो हमने हर बोला था। अब इसकी जगह क्या बोलूंगी? शी, निधि की जगह तो शी आ गया। शी प्लेज विद, निष्कर्ष के लिए क्या बोलूं? निष्कर्ष बोलो। ही तो अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि वेट, अगर मैंने लिखा होता निष्कर्ष प्लेज विद रोहन, से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे निष्कर्ष होता और यहाँ पे रोहन होता, तब मेरा सेंटेंस क्या बनता? ही, मेरा ये क्लियरली क्यों नहीं चल रहा आज? अनटाइडी हो रहा है। हाँ, अगर मैंने लिखा होता निष्कर्ष प्लेज विद रोहन, इसकी जगह रोहन लिखा है मैंने, तो मैं निष्कर्ष की जगह क्या लिखती? बताओ निष्कर्ष। जैसे निधि की जगह मैंने शी लिखा था, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऐसे निष्कर्ष की जगह क्या लिखती? ही। वेरी गुड, तो फिर तो ये ही हो गया यहाँ पे, राइट? तो वो तो सब्जेक्ट हो गया। अब उसने उसके किसी और बॉय के साथ खेला, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखूंगी ही के लिए? कोई बता सकता है? रेज बोलो, शाबाश निष्कर्ष। जैसे हर तो गर्ल के लिए है, बॉय के लिए क्या होगा? हाँ, अरे ये तो बिल्कुल बेसिक चीज बता रही हूँ मैं। चलो मैं देखती हूँ, शिंदे बस्ती सेंटर को मालूम है क्या लिखेंगे? शिंदे बस्ती सेंटर में कौन था वो? अभिमन्यु। अभिमन्यु सामने आओ। अभिमन्यु सामने आओ, कम। हाँ बताओ मेरे को अभिमन्यु। क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आएगा? शी। नहीं, शी नहीं, बॉय है। शी नहीं, बॉय, लड़का है, लड़का। लड़की क्या आएगा? किसी को सेंटर में पता? कोई बात नहीं। किस हाँ बताओ श्रावणी। म्यूट। वेरी गुड, हिम। गुड श्रावणी। तो जैसे गर्ल के लिए हर था, वैसे बॉय के लिए क्या हो जाएगा? हिम। और अगर हमने बोला शी प्लेज विद द टॉयज या ही प्लेज विद द टॉयज, तो क्या होएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम की जगह या हर की जगह क्या हो जाएगा? इट। क्या होएगा? और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट ही होता है, तो सब्जेक्ट में भी इट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी इट यूज करते हैं। मगर गर्ल्स और बॉयज के लिए शी सब्जेक्ट में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में हर करते हैं। बॉयज के लिए ही करते हैं और ऑब्जेक्ट में हिम करते हैं। ये सबको समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। सबको समझ आ गया इतना तो थम्स अप दो। ओके,
अभी हम हिज पे नहीं गए हैं, हिज अलग चीज़ है, ओके। अभी हम सिर्फ शी एंड हर, ही, हिम, इट। अच्छा, अब एक और चीज़, इससे सिर्फ इतनी चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें प्रोनाउन क्या बता रही है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तो उसने हमको ये बताया कि गर्ल है या बॉय है, राइट, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। गर्ल है या बॉय है, इसका मतलब जेंडर बताता है हमको प्रोनाउन। क्या बताता है, क्या बताता है? यस रामनगर सेंटर बताओ, व्हाट डज इट टेल अस? जेंडर। जेंडर। व्हाट इज द जेंडर? जेंडर क्या होता है? व्हाट इज जेंडर? नहीं पता। जेंडर नहीं पता? मेल और फीमेल पता है? यस मैम, मुझे पता है। हाँ, अभी म्यूट करो, मैं देखूं रामनगर सेंटर को क्या पता है। मेल और फीमेल पता है? यस मैम। क्या होता है मेल? बोलो, मेल क्या होता है? ऐसे तो मैं प्रोनाउंस आगे बढ़ा ही नहीं पाऊंगी अगर बिल्कुल बेसिक पे जाना है। वेट श्रावणी, हाँ बताओ रामनगर। मेल यानी कि पुरुष। पुरुष। और फीमेल? फीमेल, वेरी गुड। औरत। हाँ, तो पुरुष या औरत मतलब लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वैसे जेंडर, मेल है या फीमेल है, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। समझ आया रामनगर? यस मैम। तो हमने जब अभी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बोले तो हमने क्या देखा इसमें कि गर्ल्स के लिए जेंडर बता रहा है वो कि हम और लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट लड़की है या लड़का है, ऑब्जेक्ट लड़की है या लड़का है, या हम ये बात कर रहे हैं न्यूटर जेंडर, मतलब ना लड़की है ना लड़का है, इट है। कोई चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम इट यूज़ करेंगे, तो वो हमको प्रोनाउन जो है वो जेंडर बताता है। ओके, व्हाट इज़ योर नेम? रामनगर में जो अभी लड़की दिख रही है वाइट में, अपना नाम बताओ। आरोही। नहीं, अनम्यूट करके। संध्या, 1 मिनट म्यूट करो। हाँ, अपने दिखाओ शक्ल और बताओ। 3 ही बच्चे हैं ना वहाँ पे? आरोही। आरोही। हाँ, दूसरी बच्ची कौन है? लेट मी सी। परी। परी। परी, आप तो कुछ और ही कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो क्लास में? अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप तो अपने बैग के साथ कुछ कर रहे हो। कुछ समझ आया कि जेंडर क्या होता है? यस मैम। क्या होता है बताओ। यस मैम बोलने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। बोलो बोलो बोलो। आप चुप रहो। आरोही, आरोही बोला था ना नाम, आप मत बोलो। परी को जवाब देने दो। अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता। बोलो। नहीं पता। तो फिर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो क्लास में बैठ के? आप तो अपना कुछ काम कर रहे हो, तो पता कैसे होगा? तीसरी लड़की कौन है? तीसरी लड़की कौन है वहां पे सेंटर में? दिखाओ मेरे को। आपका क्या नाम है? What is your name, bete? Tell me your name. Unmute and keep your video on and tell me your name. Are you playing in the Khushbu, Arohi and Pari, right? यस मैम। Okay. So what are you people doing in the class? Are you sitting seriously to study or are you playing in the class? क्या कर रहे हो आप लोग? मस्ती करने के लिए बैठे हो या पढ़ने के लिए बैठे हो, ये बताओ मुझे। पढ़ने के लिए। तो फिर पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कभी कोई हंस रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है।
मैं इतनी फनी लग रही हूँ आपको कि आपको हंसी आ रही है? हो भी सकता है मैं फनी एक्टिंग कर रही हूँ तो आ भी सकती है हंसी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके? समझो तो सही क्या बोल रही हूँ। तो अभी प्रोनाउन का मैंने एक फायदा बताया कि उससे हमको क्या पता चलता है, बताओ खुशबू, बताओ क्या पता चलता है प्रोनाउन से? किस बारे में पता चलता है प्रोनाउन से? कि सब्जेक्ट कौन से जेंडर का है, ऑब्जेक्ट कौन से जेंडर का है, ये पता चलता है ना? समझ आया ये कि नहीं आया? यस। क्या होता है जेंडर? जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या होता है? अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। पुरुष। पुरुष या स्त्री। किसने बताया ये? किसने आपको बताया ये? मैम ने बताया? नहीं। फिर आरोही ने बताया? हाँ। क्यों, आप क्या कर रहे थे तब तक क्लास में? सिर्फ आरोही को ही समझा रही थी क्या मैं? परी, अब समझ आया आपको? यस मैम। क्या होता है जेंडर? टेल मी, क्या होता है जेंडर? देखो आजकल आप लोग कम बच्चे हो इसलिए आई कैन टेक, मैं अभी आप लोगों का फायदा है, मैं एक एक बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ और मैं वही रख रही हूँ। बताओ क्या है जेंडर? आप लोगों को फायदा उठाना है इस बात का तो आप उठाओ, नहीं उठाना तो मुझे क्या है, नहीं सीखोगे। क्या होता है जेंडर? मैम मेरी मीटिंग चल रही इसलिए वो लोग मस्ती कर रहे थे। ये तो बात नहीं है ना हेलो जब, मैम। हाँ नहीं आपकी मीटिंग चल रही, हाँ मैं अभी उनको सुना रही। नहीं पर हाँ हाँ नहीं मेरा ध्यान नहीं ना इसकी वजह से नहीं पर उनको खुद समझना है कि आपका ध्यान हो या नहीं हो। एक टीचर सामने पढ़ा रही है तो उनको ध्यान देना है ना क्या पढ़ा रही हूँ। सिर्फ मस्ती करने के लिए अगर आए हो तो फिर मस्ती करो, जाओ बंद करो क्लास और जाओ मस्ती करो। आपको लगता है मैम दूर बैठी है, मैम को पता नहीं चलेगा? मैम को सब पता चलता है। दिख गया ना आपको कि मैम को सब पता चल रहा है? तो आप लोग कोई भी ऐसे मत समझना कि मैम को आइडिया नहीं लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे इतनी दूर बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, चाहे कितने भी बच्चे बैठे हों। मेरे को बिल्कुल आइडिया लगता है कि कौन से सेंटर के बच्चे कितना ध्यान दे रहे हैं। चलो म्यूट करो, म्यूट। ओके, सो एटलीस्ट एक चीज समझ आई। संध्या आपको समझ आई? तो हमको प्रोनाउन बताता है कि सब्जेक्ट गर्ल है या बॉय है या कोई थिंग है, और ये भी बताता है कि ऑब्जेक्ट गर्ल है या बॉय है या कोई थिंग है। एक इन्फॉर्मेशन मिली, अभी मेरे को और दो इन्फॉर्मेशन जल्दी से बतानी है इसके बारे में जो हमने पिछले बार की थी। एक तो उसने हमको क्या बताया, सब बच्चे लिखेंगे, शिंदेवस्ती आप भी लिखो सब बच्चे। एक तो उसने हमको बताया जेंडर, दूसरा हमको वो बताता है नंबर। ओके, अब नंबर कैसे बताता है वो तो हमने लिखा ही नहीं। अगर मैं अब एक सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, let me write. I just want to finish this so that we can proceed with the chapter on pronouns in the next class. This is just the introduction to pronouns. ये वाली चीज़ जो है ना नॉर्मली उतने ध्यान से हम देखते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी हम लोग देख पा रहे हैं आजकल छुट्टियां हैं, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छे से ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ एक सेंटेंस। राम एंड
Sham, SHYAM, Sham are talking to Archana. Okay, Archana. Ram and Sham are talking to Archana. अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है? फर्स्ट चीज हमें क्या पता चल रही है कि हम राम और श्याम की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो नंबर, तो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, राइट? राम और श्याम. अभी हमने ही शी इट जो किया था ये सारा सिंगुलर था, एक एक जने की बात कर रहे थे. नाउ राम एंड श्याम, देयर आर टू पीपल, so which is more than one, so it is a plural. So instead of Ram and Sham, what will we write? किसी को आइडिया है कि राम और श्याम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे दे. क्या लिखेंगे? मैं अभी इसी सेंटेंस को चेंज करती हूँ. अर्चना तो गर्ल है, उसका वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको तो हम हर कर देंगे. are talking to Archana and Chaya. Okay? तो अब यहाँ पे भी दो दो गर्ल्स हैं, तो प्लूरल है और ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है. सब पेन भी तंग करता है मेरे को. तो ये क्या है? ये प्लूरल है राम एंड श्याम, तो उसके लिए हमने, और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए हमने दे लिखा है. और अर्चना और छाया क्या है? ऑब्जेक्ट. ये भी प्लूरल है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? देम. क्या लिखेंगे? देम. तो हमें इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं. प्रोनाउंस लगा के हम लिखेंगे दे are talking to them. लिखो ये सब लोग. तो ऑब्जेक्ट them हो गया, मगर जब प्लूरल में हम बात कर रहे हैं तब हमें जेंडर का नहीं पता चल रहा है, हमें सिर्फ पता चल रहा है कि प्लूरल है, नंबर का पता चल रहा है. ओके? दे आर टॉकिंग टू देम. अर्चना और छाया बॉयज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. राम और श्याम गर्ल्स भी हो सकती हैं. तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तब हमें जेंडर का नहीं पता चलता. जब सिंगुलर की बात करते हैं तब हमें जेंडर का पता चलता है. ये सबको समझ आ गया? तो थम्स अप दो. ये समझ आया? संध्या समझ आया? श्रावणी, निष्कर्ष? शिंदे बस्ती, ये समझ आया? अब मेरे को कौन बताएगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है? अब जब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? कौन बता सकता है कि मैं फर्स्ट पर्सन? हाँ बताओ. वेरी गुड. सेकेंड पर्सन. वेरी गुड. क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सब जो हैं वो सेकेंड पर्सन है. ओके? एब्सोल्युटली राइट. तो अब अगर हमने वो भी बताना हो, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, एक और सेंटेंस लिख के समझाऊं इस चीज को. अगर हम बोले अंजलि इज टॉकिंग टू Shravani about Raju. ओके? नहीं, राजू नहीं, हम बोलेंगे क्या नाम था उसका, मेरे को नाम भी याद करना है ना. बजरंगी. अंजलि इज टॉकिंग टू श्रावणी अबाउट बजरंगी.
अब क्या है, अंजलि क्या है? अंजलि कौन सा पर्सन है इसमें? जो बात कर रहा है वो कौन सा पर्सन हुआ? वो कौन, बताओ? वो आपने बता दिया, अब आप म्यूट करो, आपको समझ आ गया। मैं किसी और से पूछ रही हूँ, कोई भी हैंड रेज करो और बताओ अंजलि कौन सा पर्सन है, श्रावणी कौन सा पर्सन है और बजरंगी कौन सा पर्सन है इसमें? बोलो चाहती है बाकी बच्चे आवाज हाँ बोलो। मैम फर्स्ट पर्सन कौन, क्या, कौन सा है फर्स्ट पर्सन? कौन फर्स्ट पर्सन है? अंजलि ओके, और श्रावणी सेकंड पर्सन और बजरंगी? थर्ड पर्सन। अच्छा म्यूट करो। संध्या बताओ। मेरा ना मोबाइल में 5% चार्ज, इसलिए मैं ट्यूशन क्लिक कर दूं। लीव कर दो। पहले ये बताओ, समझ आ गया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है? मैं अगर बात ये होता है कि आई हुई होता है फर्स्ट पर्सन। हाँ वेरी गुड, मतलब जो बात कर रहा है या जो काम कर रहा है। और सेकंड पर्सन? We see that it नहीं, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। शी ही नहीं होएगा, आई और वी होगा। हाँ यू होगा सेकंड पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन? he see थर्ड पर्सन ही शी भी हो सकता है, हिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अभी हम ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अगली बार और इलेबोरेट करूँगी। उसके बाद हम प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस की वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना समझो कि प्रोनाउंस हमको जेंडर बताते हैं, वो हमको बताते हैं कि नंबर कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और तीसरा वो बताते हैं हमको कि पर्सन कौन सा है। अब मैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रही हूँ सिर्फ, अगली बार हम उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है? और संध्या, आप, आई होप आपने ये सब लिख दिया है। तो आई के लिए आई सब्जेक्ट प्रोनाउन होएगा, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होएगा? आई एम टॉकिंग टू हिम, कुछ भी हो सकता है। और वी प्लूरल में होएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होएगा। जैसे दे, आई, वी। और सेकंड पर्सन में क्या होगा? सेकंड पर्सन में होगा यू। सिंगुलर के लिए भी यू होगा और प्लूरल के लिए भी यू होगा, ओके? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। बस इतना ही अभी आज लिखो, बाकी हम इसको ही आगे अगली बार कराएंगे। सबको समझ आ गया? ये मैं बिल्कुल बेसिक फंडा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यस शिंदेवस्ती, गुड। व्हाट अबाउट श्रावणी, निष्कर्ष? अंडरस्टूड? निष्कर्ष समझ आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। ओके देन, बाय बाय। इतना लिख लो और अगली बार हम इसको आगे बढ़ाएंगे।